Good morning, students. So, in the last class, we studied about the pollination. Okay, there we studied only the abiotic factor, and in the next lecture, मतलब in the last lecture, I take abiotic factors and the biotic factors of pollination, then the pollen pistil interaction and the conditions who promote the cross pollination. I repeat these all the topics today because there are only some students attend the offline classes, so I'm repeating it. Okay. So pollinating biotic factors of pollinations or the pollinators, which are birds, then the bat, and next one is the insect, are the biotic factors which are used as a pollinators. Okay, so the pollinations which are occur or which is carried through the birds are called as the ornithophily. Are called as the ornithophily. Then the pollination which is carried out by the bats are called as the Ceratophily. And the last one, the insects. The pollination which is carried out through the insects are known as the entomophily. Are known as the entomophily. So in this way, bats, birds, and the insects are act as the pollinator. So there are some adaptations which are occur in the plants who promote the biotic factors to carry out the pollination. So, which are their characteristics or which are the adaptations in the plant? So, as we know, the bats, and the insects are the biotic factors. So, they require the smell. They are attracted towards the brightest, bright, colorful flowers or the conditions, nectar for their food. So, these all are adapted in the plant for the pollination. मतलब यहाँ पे क्या हुआ कि जो भी एडेप्टेशंस होते हैं प्लांट्स में, वो एडेप्टेशंस कौन से रहेंगे? बर्ड, बैट और इंसेक्ट जो रहेंगे वो अट्रैक्ट होंगे उन्हीं फ्लावर्स की तरफ पॉलिनेशन के लिए जो कलरफुल दिखेगा, जिसके पास ज्यादा नेक्टर प्रेजेंट रहेगा, एज वेल एज जिसके पास अच्छी स्मेल रहेगी. ठीक है, तो उसी टाइप के जो भी एनिमल जो प्लांट हैं वो अट्रैक्ट करेंगे. तो जो प्लांट होते हैं वो खुद में कलर, ब्राइटेस्ट कलर, स्वीटी सब्सटेंस लाइक नेक्टर प्रोड्यूस करेंगे, एज वेल एज एक अच्छा सा स्मेल उसको वो प्रोड्यूस करेंगे फॉर द अट्रैक्शन ऑफ बर्ड, बैट्स एंड द insect to the pollination. Next, in case of bat, there are the flowers which are lighter in color. Why they are brighter in color, lighter in color? Because the bats are live in a night, so the lighter colors attract them. Lighter colors will look more attractive in the night. So the light color like white color, light pink color, these are some colors which attract the bat for the pollination. So such a factors, such a biotic factors which are act as a pollinator. The next topic will the cross pollination. The plant promote the cross pollination. So why they promote? So what conditions are required to promote the pollination, cross pollination and not the self pollination? प्लांट जो होता है वो खुद में यूनिसेक्सुअलिटी बना के रखते हैं. क्यों यूनिसेक्सुअलिटी बना के रखेंगे? क्योंकि अगर फ्लावर खुद ही बाइसेक्सुअल रहा तो वो खुद में ही क्या करेगा? पोलन ग्रेन्स का ट्रांसफॉर्मेशन करेगा, खुद का ही स्टिग्मा रहेगा, तो वहां पर सेल्फ पॉलिनेशन होने के चांसेस ज्यादा रहेंगे. अगर प्लांट यूनिसेक्सुअल रहा तो उस प्लांट में क्या होगा कि यहाँ पर एक तो स्टिग्मा रहेगा, एक फ्लावर में एक तो स्टिग्मा रहेगा और दूसरे फ्लावर में वो असेक्सुअल रहेगा, तो दूसरे फ्लावर में सिर्फ एंथर रहेगा. तो एंथर को उसी फ्लावर में सिग्मा नहीं मिल रहा है, इसी के लिए उसे यहाँ से उड़ के दूसरे फ्लावर के तरफ जाना पड़ेगा. तो ये रहा उसका क्रॉस पॉलिनेशन. Next is the dichogamy. Dichogamy is a condition where the gynoecium and the androecium cannot be mature at the same time. If the androecium and gynoecium mature at the same time, then there are some self-pollinating conditions were occur.
ठीक है, तो वहां पर वो डाइकोगामी करेंगे, मतलब मेल फ्लावर अगर अलग टाइम पे मैच्योर होता है, फीमेल फ्लावर अगर अलग टाइम पे मैच्योर होता है, तो वहां पर सेल्फ पॉलिनेशन नहीं होगा, वहां पे बनेगा क्रॉस पॉलिनेशन। नेक्स्ट इज प्रीपोटेंसी। प्रीपोटेंसी इज द कंडीशन वेयर द outer side or the other plant pollen grains mature or germinate on a stigma earlier than the cell। मतलब यहाँ पर जो, अगर ये मेरा एक बायसेक्सुअल फ्लावर है और इस बायसेक्सुअल फ्लावर में अगर यहाँ पर बहुत सारे एंथर्स में बहुत सारे पोलन ग्रेन्स हैं, वो यहाँ पर जाएंगे और अगर बाहर के पोलन ग्रेन्स यहाँ पर इस स्टिग्मा पे आए, तो ये एक ऐसी कंडीशन है जिस कंडीशन में जो बाहर के स्टिग्मा पे आएंगे पोलन ग्रेन्स, उनको वो ज्यादा जल्दी जर्मिनेट करेंगी देन द सेल्फ एंथर्स और द सेल्फ पोलन ग्रेन्स। इसकी वजह से क्या होगा कि जो भी यहाँ पर पहले पहुंचेगा, जो बाहर से पहले आएगा, वो जर्मिनेट जल्दी होगा और अंदर के जर्मिनेट बाद में होंगे, तो ये कंडीशन आएंगी क्रॉस पॉलिनेशन में। नेक्स्ट वन इज द हेरकोगाइनी। हेरकोगाइनी इज द कंडीशन जहां पर पॉलिनेशन के लिए स्टिग्मा की साइज बहुत ऊंची रहेगी और एंथर छोटा रहेगा। अगर हमारा स्टिग्मा बहुत ज्यादा बड़ा है, मतलब अगर मैं यहाँ पे निकाल रही हूँ स्टिग्मा, तो ये स्टिग्मा बहुत ऊंचा है और ये जो भी यहाँ पे एंथर्स है वो बहुत नीचे है, तो एंथर्स में से जो भी पोलन ग्रेन्स रहेंगे वो ऊपर नहीं पहुंच पाएंगे। तो इस टाइप की जो कंडीशन रहेगी वो क्या करेगी, सेल्फ पॉलिनेशन को प्रिवेंट करेगी और क्रॉस पॉलिनेशन को प्रमोट करेगी। तो इस टाइप की कंडीशन मतलब हेरकोगाइनी कंडीशन। नेक्स्ट वन इज द सेल्फ स्टेरिलिटी। सेल्फ स्टेरिलिटी मतलब यहाँ पर एक तो मेल गमीट स्टेराइल रहेगा। स्टेरिलिटी मतलब क्या कि दे कैन नॉट रिप्रोड्यूस, मतलब वो रिप्रोडक्शन करने में किसी भी तरह की हेल्प नहीं करेंगे। सच अ कंडीशन इज नोन एज स्टेरिलिटी। तो यहाँ पर सेल्फ स्टेराइल मतलब फ्लावर क्या करेगा, खुद में ही एक फीमेल को स्टेराइल रखेगा या फिर मेल को स्टेराइल लगे करेगा, सो दैट कि वो दोनों एक साथ फ्यूज ना हो सके और सेल्फ पॉलिनेशन ना कर सके। और अगर ऐसी कंडीशन रहेगी एक सेल्फ स्टेराइल रहेगा, तो इन दिस कंडीशन उनको जो भी पोलन ग्रेन्स लगेंगे वो बाहर से लगेंगे, या फिर अगर यहाँ पर स्टिग्मा स्टेराइल है तो एंथर्स को दूसरे फ्लावर का स्टिग्मा चाहिए रहेगा फॉर द रिप्रोडक्शन। तो इन दिस वे दे promote the cross pollination. So here we discuss about the biotic factor as a pollinator and the some conditions which are required for the cross pollinations which are adopted by the plants themselves. उसके बाद हमने देखा था एक दूसरा टॉपिक दैट इज पोलन पिस्टिल इंटरैक्शन। पोलन पिस्टिल इंटरैक्शन एक इस तरह का इंटरैक्शन रहेगा, किस तरह का रहेगा ये, जिसमें इसके नाम से हम लोगों को पता चलता है पोलन पिस्टिल इंटरैक्शन। इसमें क्या होता है, जो भी पोलन ग्रेन्स रहेंगे, पोलन ग्रेन्स हमारे जो भी स्टिग्मा रहेंगे उस स्टिग्मा पे किस तरह से इंटरैक्ट होते हैं, दैट इज पोलन पिस्टिल इंटरैक्शन। इन दोनों का जो इंटरैक्शन रहेगा उसे हम लोग बोलेंगे पोलन पिस्टिल इंटरैक्शन। पोलन पिस्टिल इंटरैक्शन में वो सारे इवेंट्स आएंगे जो एक पॉलिनेशन से लेके तो फर्टिलाइजेशन तक वो कैरी आउट करेंगे। दिस ऑल द इवेंट्स कलेक्टिवली आर नोन एज द पोलन पिस्टिल इंटरैक्शन। ओके, देन इन दिस वी स्टडी व्हेन pollen grains come on the stigma surface, the stigma has capability to known or to recognize their self pollen grains as well as the another pollen grains। मतलब स्टिग्मा के पास ऐसे कुछ केमिकल्स होते हैं कि जिनकी वजह से वो अपने पोलन ग्रेन्स कौन से हैं और दूसरे स्पीसीज के पोलन ग्रेन्स कौन से हैं उनको वो रिकॉग्नाइज कर सकता है। तो उनकी रिकॉग्नाइजेशन से क्या होगा कि जो भी उनके कंपैटिबल पोलन ग्रेन्स है उनको वो जर्मिनेट करे में हेल्प करेगा, और जो नॉन कंपैटिबल है, अनकंपैटिबल टाइप्स ऑफ पोलन ग्रेन्स है, उनको वो जर्मिनेट नहीं होने देगा। तो इस टाइप का जो भी इंटरैक्शन रहता है उसे हम लोग बोलेंगे पोलन पिस्टिल इंटरैक्शन। ओके, देन वी स्टडी द आर्टिफिशियल फर्टिलाइजेशन। आर्टिफिशियल फर्टिलाइजेशन मतलब ये इस टाइप का फर्टिलाइजेशन होता है जो मैन खुद करता है, मतलब इट इज आर्टिफिशियली कवर्ड।
तो यहाँ पर क्या होता है कि अगर मुझे आर्टिफिशियल फर्टिलाइजेशन करना है तो वहां पर मैं क्या करूंगी, एक तो स्टेमेन को गायब करूंगी या फिर मैं सिग्मा को ढक के रखूंगी, और मुझे जो भी लगेगा कि मुझे इस टाइप के पोलन ग्रेन्स को मेरे सिग्मा पे जर्मिनेट करना है तो मैं उसी टाइप के डिजायरेबल पोलन ग्रेन्स को अपने फ्लावर में लाऊंगी। तो यहाँ पर हम लोगों को दो टर्मिनोलॉजीज मिलती है, जैसे कि हमने यहाँ पे एक फ्लावर निकाला था, इस फ्लावर में स्टिग्मा था, इसी फ्लावर में हमारे स्टेमन्स भी आते हैं, ठीक है, इस टाइप का फ्लावर था। अगर मैं इस फ्लावर में से पोलन मतलब हमारे एंथर को रिमूव कर दूंगी, एंथर कौन है, मेल गमीट है, अगर मैं हमारे फ्लावर में से एंथर को रिमूव करती हो तो इस टाइप के कंडीशंस को हम लोग बोलते हैं इमैस्क्यूलेशन। The condition where the male gametes are removed from the flower or removed from the reproductive structure is known as the emasculation. The second terminology is the bagging. So what is bagging? If I covered my stigma with the bag completely airtightly, then this is known as the bagging process. Why I am doing this? Because I want to pour my desirable pollen grains on that particular stigma. अगर मैं यहाँ पर एंथर्स को ढक के एंथर्स को वैसे ही रहने दूं और स्टिग्मा को वैसे ही रहने दूं तो क्या होगा, इसी के जो पोलन ग्रेन्स है वो स्टिग्मा पे जाके बैठेंगे और वहां पे क्या हो जाएगा, पॉलिनेशन हो जाएगा बिफोर मैं वह करूंगी। तो मैं क्या करूंगी, यहाँ के जो भी एंथर है उसको कट करूंगी, उनको निकाल के रखूंगी और यहाँ पे स्टिग्मा पे मुझे जो चाहिए उन पोलन ग्रेन्स को मैं वहां पर इंसर्ट करूंगी फॉर द पॉलिनेशन पर्पज, फॉर द फर्टिलाइजेशन पर्पज। तो हम लोगों को इसमें यही ध्यान में रखना है कि फर्टिलाइजेशन मैनमेड होता है, डिजायरेबल पोलन ग्रेन्स हम लोग हमारे पर्टिकुलर स्टिग्मा पे अटैच करेंगे और ये तभी हो पाएगा जब हम इमैस्कुलेशन करेंगे, मतलब पर्टिकुलर फ्लावर में से एंथर को निकाल लेंगे या फिर हम लोगों को जो भी हमारा सिग्मा है उनको निकालना पड़ेगा। तो इस तरह से यहाँ पे हम लोगों ने किया था आर्टिफिशियल फर्टिलाइजेशन। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा डबल फर्टिलाइजेशन। So what is mean by double fertilization? Double fertilization is a very complex process which is occur in the angiospermic plant. कैसे? Double fertilization name suggests there is a fertilization occur 2 times. That's why we are called it as a double fertilization. Okay. So double fertilization is first of all discovered by the scientist न्यूवास्किन इन द लिलिशियस प्लांट। मतलब जो भी लिली के प्लांट्स होंगे उन लिली के प्लांट्स में न्यूवास्किन इन्होंने डिस्कवर किया था डबल फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस। अब यहाँ पर मेल गमीट है, फीमेल गमीट है, पॉलिनेशन भी हो चुका है, तो अब हमें ध्यान देना है हमारे फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस पे। सो the fertilization which is occur in angiospermic plant is known as the double fertilization or the triple fusion. Okay, so what is double fertilization? क्यों हम उसे double fertilization कहते हैं वो हम देखेंगे। यहाँ पर ये हम लोगों को पता है कि क्या हुआ था पॉलिनेशन में, क्या होता है कि जो भी एंथर्स है, एंथर्स कम ऑन द स्टिग्मा, दे स्टिक्स देयर एंड दे एब्जॉर्ब द नेक्टर्स एंड फॉर्म्स अ पोलन ट्यूब। These pollen tubes elongate large and this pollen tube germinates and come towards the ovule. Okay, when it germinates completely, it enters in the ovule through the micropillar end. यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो भी पोलन ग्रेन है वो स्टिग्मा पे स्टिक हो गया है, स्टिग्मा पे स्टिक होके वहां से नेक्टर उसने क्या किया, सुक्रोज जो है वो सुक्रोज उसने लिया और सुक्रोज लेने के बाद वो पोलन ट्यूब को जर्मिनेट करता है। ये है हमारा स्टिग्मा, ये जो भी दिख रहा है वो है स्टिग्मा, स्टिग्मा का ये है हमारी स्टाइल और ये है हमारी ओवरी। इस ओवरी के अंदर ये जो है वो है हमारा ओव्यूल और पोलन ग्रेन्स जो कि हमारे स्टिग्मा पे अटैच्ड है, वो पोलन ग्रेन्स क्या करते हैं, सुक्रोज को लेते हैं, इनटेक करते हैं और
वहां पर वो पोलन ट्यूब का जर्मिनेशन करते हैं। अब पोलन ट्यूब में कौन कौन सी चीजें आ रही है? पोलन ट्यूब में आते हैं हमारे 2 मेल गमीट और एक ट्यूब सेल। ओके, यहाँ पर आए हैं 2 मेल गमीट एंड द ट्यूब सेल, वो नीचे की तरफ आ रहे हैं। तो सबसे पहले जब भी पोलन ट्यूब ओव्यूल की तरफ आती है तो उसके ओव्यूल में एंट्री करने के 3 वेज होते हैं। मोस्ट प्रोबेबली ये देखा जाता है कि जो भी पोलन ट्यूब है इट एंटर्स फ्रॉम द माइक्रोपिलर एंड विच इज टूवर्ड्स द लोअर साइड ऑफ द ओवरी। तो यहाँ पर है हमारा माइक्रोपिलर एंड। इफ द पोलन ट्यूब एंटर्स फ्रॉम इट्स माइक्रोपिलर एंड, the term is known as the fertilization process is known as the porogamy type of fertilization, because here the pollen tube is entered from the micropillar end. If the pollen tube is entered from the chalazal end, then such a condition is known as the chalazogamy, means where the pollen tube enter from the chalazal end। मतलब ये pollen tube अगर यहाँ से enter हुई तो इसे हम लोग बोलेंगे chalazogamy। Then if the pollen tube is entered from the integuments, if it is entered from the integuments, then such condition is known as the mesogamy type of fertilization। Okay, so we consider that the pollen tube is entered from its chalazal end, means it is a porogamy type of fertilization। Now what happens when the pollen tube is entered from the micropillar end? It get attached or it get entered from the synergids। Okay, these two are the synergid cells। So what happened here? The pollen tube is entered from the synergid cell. They take a nutrition from that synergid and they get ruptured in that synergid cell, and after rupturing the pollen tube, these two male gametes get released into the embryo sac, and after releasing it into the embryo sac, the one male gamete get attached with the or get fertilized with the egg cell, and the another one get attached with the secondary nucleus which having the 2 nucleus। So when we are talking about the male gamete is a haploid cell। Okay, male gamete is the haploid cell. Our egg cell is also haploid, and when the haploid male gamete is fuses with the haploid egg cell in the embryo sac, they form a diploid zygote. Why they forms a diploid? Because male gamete is haploid and it fuses with what? It fuses with the haploid egg cell, and hence they form a diploid zygote। Okay, and these conditions where the haploid known as the syngamy type of conditions. In the examination, they can ask syngamy for the definition point of view or in our fill in the blanks. So we have to concentrate on the terminologies. Syngamy means what? Syngamy is a condition where the haploid male gamete gets fuses with the haploid female egg cell and convert into the diploid zygote is known as the syngamy condition। Okay, so here one fertilization is occur, जहां पर एक मेल गमीट ने क्या किया, एक सेल के साथ फ्यूजन किया, तो ये हुआ हमारा फर्स्ट फर्टिलाइजेशन। अब वेयर द सेकेंड फर्टिलाइजेशन ऑकर, अब दूसरा मेल गमीट बाकी है। सो द सेकेंड मेल गमीट गेट फ्यूजेस विद द सेकेंडरी न्यूक्लियस। हियर वी ड्रॉ अ secondary nucleus। So the second male gamete get fuses with the secondary nucleus and it forms the primary endosperm nucleus, which is shortly PEN, means primary endosperm nucleus,
which is formed with what? Second male gamete and our diploid secondary nucleus. सेकेंडरी न्यूक्लियस क्यों है डिप्लॉयड? क्योंकि एक सेल है और उसमें दो न्यूक्लियस प्रेजेंट है, इसलिए हमने बोला उसको डिप्लॉयड न्यूक्लियस। तो यहाँ पर क्या हुआ, कैसी कंडीशन फॉर्म हुई? एक हैप्लॉइड मेल गमीट है, हैप्लॉइड मेल गमीट है, और यहाँ पर डिप्लॉइड सेकेंडरी न्यूक्लियस है, और ये इस तरह से फॉर्म करता है ट्रिप्लॉइड कंडीशन, और इसे हम लोग बोलते हैं triploid fertilization or the triple fertilization. We can say it as a triple fertilization. So in this way, the one male gamete get fuses with the egg cell known as the syngamy type of fertilization, and the second male gamete get fuses with the secondary nucleus and form the triploid structure which is known as the triple fusion. In this way, one fusion is with egg cell and the second fusion or second fertilization is occurred with the secondary nucleus. Hence, we called it as a double fertilization process. Okay, so अब जो डबल फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस है ये आप लोगों के दिमाग में बैठ गई होंगी, ये मैं कंसिडर करती हूँ। और अब इसके सिग्निफिकेंस क्या है? व्हाट आर द सिग्निफिकेंस ऑफ द डबल फर्टिलाइजेशन? फर्स्ट वन इज द फूड स्टोर्ड ओव्यूल। ड्यू टू द डबल फर्टिलाइजेशन दे फॉर्म अ food stored material, food stored ovule. Okay, next one is diploid zygote produced. Here diploid zygote is produced when the egg cell and the one male haploid gamete fuses, it forms a diploid zygote, and when a diploid zygote is produced, they forms a embryo, and embryo forms a one new organism or one new individual. In this way, the process of double fertilization forms a new individual. It is the second one significance of the double fertilization. Then next, the PEN. What is PEN? PEN is the primary endosperm nucleus. When the PEN is get developed into the nutritive endosperm tissue, the PEN later on develop and it forms the nutritive endosperm tissue which are give the nutrition for the further development, which is occurring as the post fertilization. Okay, next, the help to avoid the polyembryony. When the only two male gametes are fused, one male gamete fuses with the egg cell, it forms the one embryo. So here they avoid the polyembryonic condition, they perform or they form only the one embryonic structure. In this way, these are some significance of the double fertilization. In the next class, we discuss about the next topic. Thank you.